Okay, so hello everyone. Today we will see like how we can implement binary tree by using Python. So this is the topic we have to see. Binary tree implementation. And that too using again same Python. So if you have watched the previous video where I have explained how we can implement linked list, so same structure we will use here for the binary tree as well. So we know that this is the general structure of binary tree where we have something called as a root. It has a some left child and right child like this. So we have seen like how each node can be represented. Let's say this is your 5. How it can be represented? It can be represented by using your doubly linked list, where this will be what? It will be your data at the center, and this left part actually holds your address of left node, and this right part hold the address of your right node or right child, you can consider. Okay, if we are just calling this as a doubly linked list, so we will be calling this as a previous and the next. So here what we have done, we have replaced this name previous by the name left, and next is replaced by right, like this. Okay, same will be happening for this two as well, these two nodes. Here also you will have the same thing, some 3 parts. At the center you will have your data. This is 7, this is 10. Okay, so you can see like 7 has no child and 10 also has a no child. So by default address of this will be what? It will be null. It will be here null, 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 and a null, like this. Okay, so what we will do, we will just try to create now the Python code for this one. Just let me open VS Code. It's here. What we will do, we will first create a node. So this is class node. Here I will create constructor. In this constructor we require some 3 things. You can see in every node of your doubly linked list we have this 3 fields. This is data, this is left pointer, this is right pointer. So we require these 3 things. So I will just create here self dot data equals to data. Okay, means user will pass that data. Then next we require left pointer, so just write next left, and then we require right pointer, so just write right. Okay, so what is the by default value if we are calling some node for the first time or creating for the first time? So what we can have, we can just have that node with some data which user will pass. ठीक है, तो वहां पे data तो user pass कर देगा. ठीक है, data user pass कर देगा, but address of left and right will be what? It will be by default null because it's not pointing anywhere. वो कहीं पे भी point नहीं कर रहा है, इसीलिए वो null रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी नल. हम पाइथन में नल से करते हैं. ठीक है, नल एक्सेप्ट नहीं करता है, C++ में चलता था नल. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ नोड स्ट्रक्चर. आफ्टर दिस व्हाट वी कैन हैव अ क्रिएट फंक्शन. तो वी विल क्रिएट दैट क्रिएट फंक्शन, जिसमें अभी आपको क्या पूछना है यूजर को कि वाई एंटर नंबर ऑफ नोड्स. सो लेट्स से आई विल कॉल n इज व्हाट? दैट नंबर ऑफ नोड्स. तो हम एक इनपुट फंक्शन लेंगे. इनपुट में हम पूछेंगे एंटर डेटा टू क्रिएट नोड. ठीक है, हम डेटा ले रहे हैं. लेट्स से n अगर आपका क्या है 0 है, सो वी कैन से वी शुड नॉट हैव एनी न्यू नोड्स. वी कैन से 0 फॉर स्टॉप. ठीक, तो 0 छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू दो, देन यू विल गेट द डेटा और यू विल गेट द नोड टू बी क्रिएटेड. ठीक है, सो वी विल जस्ट राइट दैट कंडीशन इफ n इज व्हाट 0. तो उस केस में आपने रिटर्न करना है नल को. आपने कोई भी नया नोड नहीं बनाना है, बट 0 को छोड़ के कुछ भी है, देन यू शुड क्रिएट अ न्यू नोड. तो न्यू नोड बनाना है यानी आपको क्या करना है, आपने जो भी डेटा दे रहे हो
वही डेटा यहाँ पे जाना चाहिए सेल्फ डॉट डेटा में, उसका लेफ्ट पॉइंटर नल होगा, राइट पॉइंटर नल होगा। मीन्स आपको इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ओपी में हम जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, उसी ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है। लेट से मैं इसे रूट बोलता हूँ, ठीक है। तो उसमें डेटा आपको देना है, डेटा अभी क्या होगा आपका n, और लेफ्ट आपका होगा नल एंड राइट भी होगा नल, ये सब चीजें नल, लाइक दिस, ठीक। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रिएट रूट इक्वल टू नोड, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट आप एन के लिए बना रहे हो। सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बस आप समझने के लिए यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी हैव डन, ठीक है। आफ्टर दिस, अभी इसके बाद हमें क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, आपका एक नोड बन गया जिसमें आपने वैल्यू पास कर दी। लेट्स से वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपकी n इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 5 आपका एक बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज रेडी नाउ, ठीक है। अभी इस 5 के लेफ्ट में मुझे 7 डालना है और राइट में 10 डालना है। तो इसीलिए आई विल नीड व्हाट, आई विल नीड अगेन कि वह एंटर समथिंग टुवर्ड लेफ्ट। सो आई विल जस्ट राइट हियर एंटर लेफ्ट ऑफ व्हाट x, या आप जिसे बोल रहे हो n, ठीक है। तो जो आपने n लिया है उसके लेफ्ट में डालो, ठीक है। तो ये जब आप लेफ्ट लोगे तो ये आपके करंट रूट के कहाँ पे जाना चाहिए, अगर आपका करंट ऑब्जेक्ट ये है रूट है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ऑब्जेक्ट है रूट नाम का, इसके लेफ्ट में आपने क्या डालना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसके राइट में एक फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक दिस, ठीक है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, और उसी के लिए फिर से भी क्या लेना है, डेटा ही पूछना है आपको, फिर से उसका लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, रूट डॉट लेफ्ट के लिए आई विल रिक्वायर सेम थिंग्स टू बी रिपीटेड, ठीक है। यही चीजें मुझे रिपीट करनी है, यानी मुझे फिर से डेटा लेना है, मुझे फिर से चेक करना है n जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है देन डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट, अगर जीरो छोड़ के कुछ भी वैल्यू है देन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो मुझे रूट के लेफ्ट में डालना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रूट डॉट लेफ्ट, और मुझे इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, इसीलिए आई विल कॉल द सेम फंक्शन व्हिच इज क्रिएट, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट क्रिएट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। देन उसके बाद हमें फिर से राइट में लेना है, तो राइट के लिए अगेन आई विल राइट द सेम क्वेश्चन और सेम मैसेज, एंटर राइट ऑफ n, ठीक है। n उसी डेटा के राइट में लो, ठीक है। और उसे कहाँ पे आप पास करोगे, आप रूट के राइट में पास करोगे, क्रिएट, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन लेट्स से हम रूट को रिटर्न कर देंगे। सो आई विल रिटर्न रूट, ठीक है। हम रूट को रिटर्न कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम जो आपका मेन रूट है, जो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अगर आपका ये रूट है 5, तो ए 5 कहाँ कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, देखो इट्स पॉइंटिंग टूवर्ड लेफ्ट, इट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स राइट एज वेल। तो हम इस रूट को रिटर्न करेंगे, यानी आप इनडायरेक्टली 7 का भी एड्रेस होल्ड करोगे और 10 का भी एड्रेस होल्ड करोगे, मीन्स एवरीथिंग विल बी रिटर्न, ठीक है। तो उसके लिंक्स भी रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट यू कैन से क्रिएट फंक्शन, ठीक है। सो यू कैन जस्ट ट्राई टू कॉल दिस क्रिएट फंक्शन नाउ, ठीक है। हम इसे कॉल करेंगे, वी विल चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट, ठीक है। जस्ट रन दिस, so you can see we got this prompt कि enter data to create node, ठीक है। so let's say we have passed 5, ठीक है। तो 5 के बाद वो क्या पूछ रहा है, enter left of 5, ठीक है। तो जैसे आपने 5 एंटर किया तो प्रोसेस क्या हुई, आपकी n की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। ये 5 हो गया, उसके बाद मैसेज आया कि एंटर लेफ्ट ऑफ 5, तो लेफ्ट ऑफ 5 मीन्स दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, जो लाइन नंबर आपका 11 है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे मैसेज दोगे तो फिर से जा कहाँ पे रहा है, देखो प्रॉम्प्ट, दिस स्टेटमेंट इज कमिंग रूट्स लेफ्ट, ठीक है। तो रूट के लेफ्ट के लिए हमने फिर से किसे कॉल किया, सेम क्रिएट फंक्शन को।
हाँ, तो इसीलिए आपको वही मैसेज फिर से रिपीट मिला है कि एंटर डेटा टू अगेन क्रिएट द नोड, बट ये कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट ऑफ 5 को जाएगा, ठीक है, रूट के लेफ्ट को जाएगा। दैट्स वाई दिस सेम स्टेटमेंट्स अगेन कमिंग, ठीक है। सो अगर मैं अभी फिर से बोलता हूँ कि रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ 5 इज व्हाट, 7, ठीक है, 7। तो अभी क्या होगा, 7 के लिए भी फिर से वही होगा, लाइक आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें फिर से डेटा होगा आपका 7, ठीक है। अभी जो लेफ्ट था वो नन नहीं रहा, वो अभी आपने रूट के लेफ्ट को दिया है ये वाला, ठीक है। दैट्स व्हाई रूट्स लेफ्ट इज व्हाट नाउ, दिस कंप्लीट ऑब्जेक्ट, जिसे आप फिर से रूट ही बोल रहे हो, ठीक है, बट दिस रूट इज व्हाट, इट्स लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपका लेफ्ट है, यहाँ पे भी राइट है, जो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल ही है, यहाँ पे भी नल ही है, ठीक है। सो इफ आई विल प्रेस एंटर, तो जैसे मैं एंटर करता हूं तो होगा क्या, देखो अगेन इट विल आस्क फॉर एंटर लेफ्ट ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है और यही स्टेटमेंट रिपीट हुआ, एंटर लेफ्ट ऑफ 7, ठीक है। तो जैसे मैं लेफ्ट को एंटर करूंगा, बट अभी मुझे लेफ्ट में कुछ भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दिस टू बी नल, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, नल ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, n की वैल्यू 0 देनी पड़ेगी, सो आई विल से इट्स अ 0। तो जैसे मैं 0 दूंगा तो उस केस में आपका लेफ्ट तो चला गया, अब उसके बाद आएगा राइट ऑफ दैट 7, ठीक है। सो आई विल जस्ट से दिस इज व्हाट 0, सो यू कैन सी नाउ इट्स आस्किंग फॉर राइट ऑफ 7, ठीक है। तो राइट भी मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे राइट में क्या चाहिए, 7 के 0 ही चाहिए, मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, नल चाहिए। दैट्स व्हाई आई विल एंटर वैल्यू व्हाट 0, ठीक है। सो आई विल एंटर हियर एज वेल 0, ठीक है। तो देखो प्रॉम्प्ट अभी किसके लिए आया है, प्रॉम्प्ट इज नाउ कमिंग फॉर एंटर राइट ऑफ 5, बिकॉज 5 का लेफ्ट तो आपने खत्म कर दिया, अभी कर्सर जाएगा ऊपर, मीन्स फॉर दिस रूट जो प्रीवियस रूट था, तो अभी प्रीवियस रूट का देखो लेफ्ट हो गया, नाउ इट्स आस्किंग फॉर इट्स राइट। तो राइट के लिए आप अभी फिर से कोई डेटा दे सकते हो, लेट्स से वी विल एंटर 10, ठीक है। तो उस केस में डेटा होगा 10, और लेफ्ट इज योर नल एंड राइट भी आपका है नल, ठीक है, राइट भी है नल। सो यू कैन सी नाउ लेट्स से आई विल एंटर 10, तो अभी फिर से प्रॉम्प्ट होगा कि वह एंटर लेफ्ट ऑफ 10 एंड राइट ऑफ 10, ठीक है। सो वी विल जस्ट से दिस इज व्हाट 0 एंड zeros, ठीक है, यू कैन सी। उसके बाद हमें पूछ रहा है एंटर लेफ्ट ऑफ 10, तो लेफ्ट ऑफ 10 भी मुझे नहीं बनाना है कुछ, ये क्या होना चाहिए, नल ही होना चाहिए, ये भी नल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी न्यू नोड। तो अभी ये भी 0 देता हूं मैं, लेफ्ट ऑफ 10 एंड राइट ऑफ 10। सो यू कैन सी वी गॉट दिस काइंड ऑफ ट्री, अभी ये मेमोरी में था एंड वी हैव डन नथिंग, हमने देखा ही नहीं, इस पे कोई ट्रैवर्सल ही नहीं किया, दैट्स व्हाई वी गॉट नथिंग हियर, ठीक है। तो क्रिएशन हो गया, अभी हमें इसमें ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स के लिए अगेन आई विल राइट हियर वन मोर फंक्शन, लेट्स से हमें प्री ऑर्डर करना है। तो प्री ऑर्डर आपको पता है, प्री ऑर्डर आप किस तरह से करते हो। प्री ऑर्डर के लिए ऑल द टाइम फर्स्ट, अगर ये मेरा ट्री है जहां पे नोड्स क्या है 5, 7 एंड 10, आई विल रीड्रॉ हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ करता हूँ, आपका रूट था 5, लेफ्ट में है 7 एंड राइट में है 10, ठीक है। सो इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा वी स्टार्ट्स विथ रूट, देन हम लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट में कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आप स्टॉप हो गए, देन वी विल थिंक फॉर राइट साइड, ठीक है। तो यू कैन सी व्हाट वी हैव रूट इज व्हाट 5, ठीक है, लेफ्ट इज व्हाट 7 एंड राइट इज 10, सो दिस आउटपुट वी शुड गेट, ठीक है, 5, 7 एंड 10 लाइक दिस, ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रूट है उसका डेटा पहले प्रिंट करेंगे, और ये रूट रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो हम इसी रूट को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो हमें पहले डेटा प्रिंट करना है, किसका डेटा प्रिंट करना है, रूट का डेटा, ठीक है। बट कब आप प्रिंट करोगे, बिकॉज यू नो दैट कि यहाँ पे अगर आप 7 को रूट कंसिडर करते हो तो इसका भी लेफ्ट है, इसका भी राइट है, 10 also has left and right, so you should print the data of that root until and unless that root is not none,
तब तक आपने डेटा रूट का प्रिंट करना है, जब तक वो क्या नहीं होता है, नन नहीं होता है, तब तक आपने प्रिंट करना है। ठीक है, वी विल फर्स्ट ट्राई टू प्रिंट एज इट इज। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम उसके लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग ना, फर्स्ट आप रूट को प्रिंट करते हो। ठीक है, आप रूट को प्रिंट करते हो, सेकंड आप लेफ्ट में जाओगे, थर्ड आप राइट में जाओगे। ठीक है, तो अभी लेफ्ट में जाना है, तो इसीलिए आप लेफ्ट में जाने के बाद भी क्या करोगे, आप रूट का ही डेटा प्रिंट करोगे। मीन्स इन दिस केस रूट विल बी इट्स लेफ्ट, तो हम फिर से उसी फंक्शन को कॉल करेंगे प्री ऑर्डर को, और उस केस में रूट विल बी व्हाट, इट्स लेफ्ट। ठीक है, सो अभी आपने रूट का डेटा प्रिंट कर दिया, 5 होगा शायद से वो रूट आपका। ठीक है, आपने 5 को प्रिंट कर दिया। नाउ यू आर थिंकिंग कि उसका लेफ्ट चाहिए आपको, हाँ उसका लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट क्या है, वो है आपका 7, देख लो यहाँ, दिस इज व्हाट 7, दिस इज 7। ठीक है, तो रूट इस केस में क्या होगा, रूट्स लेफ्ट। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट लेफ्ट इज व्हाट 7। ठीक है, तो मुझे अगर लेफ्ट पे जाना है तो उस केस में लेफ्ट इज व्हाट, रूट इज व्हाट, नाउ इट्स लेफ्ट। ठीक है, तो रूट्स लेफ्ट इज व्हाट, लेट्स से 7। तो अभी मैं 7 पे गया, तो 7 पे जाने के बाद फिर से मैंने किसे कॉल किया है, उसी सेम फंक्शन को, प्री ऑर्डर। ठीक है, तो अभी रूट क्या बन गया, इट्स लेफ्ट। तो 7 का डेटा क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे इट्स लेफ्ट पास कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर पे जाना है। ठीक है, सो यू कैन सी अभी यहाँ पे फिर से आप डेटा प्रिंट कर रहे हो और उसके लेफ्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पे 7 का लेफ्ट क्या है, 7 का लेफ्ट इज नन। ठीक है, तो 7 का लेफ्ट नन है, तो दैट विल नॉट प्रिंट, वहां पे आपको इशू आएगा, बिकॉज इट हैज नथिंग ना, उसका डेटा ही कुछ नहीं है, आप पास ही नहीं करोगे तो प्रिंट नहीं होगा। बट हमें, ठीक है, लेफ्ट के बाद हमें रूट पे राइट पे जाना था ना, आई विल जस्ट राइट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 10 पे जाना है, यानी रूट का राइट। ठीक है, वो क्या है आपका 10 है, तो 10 तो मिलना चाहिए, बट इट विल नॉट वर्क। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका लेफ्ट का, फिर से अगर आप लेफ्ट लेते हो, 7 का लेफ्ट नल था। ठीक है, बट वी विल सी अगर वो स्टेटमेंट नहीं लिखते तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आई विल जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दिस, एक ऑब्जेक्ट नाम का या ओबी नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, जिसमें आपने इस क्रिएट को स्टोर किया, बिकॉज ये क्रिएट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रूट को, तो ये उस रिटर्न रूट को ओबी स्टोर करेगा, और इसी ओबी को हम पास करेंगे अभी नेक्स्ट फंक्शन में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूट, सॉरी जिसे हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। सो हम प्री ऑर्डर को कॉल कर रहे हैं और इसमें ओबी को पास कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस ओबी इज व्हाट, ये ओबी आपका रूट है। ठीक है, और इसी रूट को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो ओबी अगर आप यहाँ पे देखें, सो इट विल बी ट्रीटेड एज रूट वेरिएबल। So we will see whether it works. तो क्रिएशन होगा, नो इश्यूज, क्रिएशन विल वर्क वेरी फाइन। ठीक है, क्रिएशन में कोई इश्यूज नहीं होगी, प्रिंट भी होगा, बट आपने कहाँ पे स्टॉप करना वो लिखा नहीं, तो शायद से वहां पे आपको इश्यू मिलेगा। तो 5 आपने लिया नोड, 5 का लेफ्ट इज 7, 7 हैज नो लेफ्ट, इसलिए उसका लेफ्ट इज व्हाट, 0, लेफ्ट ऑफ 7 इज 0, राइट ऑफ 7 इज ऑल्सो 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो जैसे 0 लिखता हूं तो वैसे कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, राइट भी होगा, अभी 5 पे जाएगा, और 5 का क्या लेगा, अभी राइट लेगा। ठीक है, सो यू कैन सी जैसे मैं 0 देता हूं तो यू कैन सी नाउ कंट्रोल इज आस्किंग फॉर राइट ऑफ 5। सो नाउ वी हैव रिटन 10, तो 10 का लेफ्ट क्या है, 0 है, 10 का राइट भी 0 है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या मिला, 5 एंड 7 प्रिंट हो गया। जैसे मैंने बोला ना, 2 डेटा प्रिंट हो गए, बट थर्ड पे इश्यू आएगा। ठीक है, तो आप नहीं जा सकते आगे। तो व्हाट यू नीड टू राइट, आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इफ रूट इज नॉट नन, जब रूट नन नहीं है तभी ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर नन होता है देन फिर से आपने स्टॉप करना है और आपने कंट्रोल ऊपर भेजना है। ठीक है, सो यू कैन अगेन सी दिस, अगेन डेटा इज व्हाट 5, उसका लेफ्ट है 7, 7 हैज नो लेफ्ट नो राइट, बट 5 हैज राइट एज 10। ठीक है, और 10 हैज नो लेफ्ट नो राइट, सो यू कैन सी वी गॉट 5, 7 and 10।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, यही चीजें हमें एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, और वही आपका आउटपुट मिला है. सो दिस इज व्हाट जस्ट रिकर्सिव प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यू कैन सी, ठीक है. सो दिस इज रिकर्सिव pre-order traversal of binary tree. सिमिलरली अगर आपको अभी रिकर्सिव में ही इन ऑर्डर करना है या पोस्ट ऑर्डर करना है तो हमें बस सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा. अगर इन ऑर्डर है तो पहले लेफ्ट आएगा, देन रूट का डेटा आएगा, देन राइट आएगा. दैट इज फॉर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. पोस्ट ऑर्डर करना है तो आप पहले लेफ्ट में जाओगे, देन राइट में जाओगे, देन रूट में जाओगे. उस तरह से आपने जाना है, ठीक है. सो वी विल जस्ट से दिस, बट एज ऑफ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह से आपका वर्किंग होता है रिकर्सिव ट्रैवर्सल में. तो इसे रिकर्सिव भी क्यों बोलते हैं, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवर्सल. तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने प्री ऑर्डर फंक्शन को उसी के बॉडी में कॉल किया है, तो इस तरह से जो कॉल होता है ना, इसे बोला जाता है रिकर्सिव कॉल. That's why this traversal is called as recursive traversal. ठीक है. तो internally here the system has or compiler has a stack which is holding those nodes. But ये actually कैसे होता है, इसके लिए we have a non-recursive traversal which we will see in upcoming videos. ठीक है. So this is just a recursive traversal. Please remember this. It's a recursive traversal of your binary tree. ठीक है. और वो भी आपने कौन सा देखा है, this is just you can consider as your pre-order. ठीक है. So this was for this video. Thank you for watching.